नाउ इन दिस सेशन हम लोग फोकस करेंगे उस पार्ट पे जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है. द इनिशियल पार्ट इज कांस्टेंट फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू. द सेम वे एनबीएफसी वाज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू. This is also applicable to both. Only few areas is somewhere addition deletion, but both the students can refer to this. Okay. Going ahead, the very first question, अगर audit of banks कर रहे हैं, so how many enactments are applicable? So there are many. Principal enactments governing bank audit are RBI Act, Banking Regulation Act, Companies Act, SBI Act, Regional Rural Bank Act, Information Technology Act, Prevention of Money Laundering Act, Payment and Settlement Act. Basically what I have done is जितना याद रह सके ना उतना by heart करने की कोशिश. Basically this question may come for 4 marks max. So यहाँ पे आपको 10 से 12 एक्ट के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो जो इजी है वो 8 मैंने उठा करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है. इसके अलावा भी बहुत है, बट जो इजी है, जो बाय हार्ट करने में इजी है, दैट आई हैव जॉटेड इट डाउन, ठीक है. ओके, सो दैट इज अ फर्स्ट वेरी क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन जो हमको करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. हु अपॉइंट्स द ऑडिटर इन केस ऑफ बैंक? Now for this what I have done is we have classified banks. Firstly we'll be talking about banking company. Because it is a company, auditor will be appointed at AGM by shareholders. Simple. Okay, for banking company at AGM by shareholders. Next, for nationalized bank by board of director, and in both the cases a special permission is required to be taken from RBI. A special approval is taken from RBI. ठीक है. सो दो चीजें की क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ बैंकिंग कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ नेशनलाइज्ड बैंक. फॉर बैंकिंग कंपनी एट एजीएम बाय शेयर होल्डर्स. फॉर नेशनलाइज्ड बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट, एंड इन बोथ द सर्कमस्टांसेस अ स्पेशल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम आरबीआई. ठीक है. नेक्स्ट टू कंसेप्ट्स, एसबीआई एंड रीजनल रूरल बैंक. एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस इज गवर्नमेंटली ओन्ड, auditor is appointed by CAG, Comptroller and Auditor General of India, in consultation with central government. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कैग प्लस सीजी. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिवाइज इट विल बी वेरी क्विक. नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक, द बैंक इटसेल्फ विल अपॉइंट, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक विल अपॉइंट ऑडिटर. ठीक है, डन. ओके. नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन फॉर अ बैंकिंग कंपनी. द रेम्यूनरेशन प्रोविजन इज एज पर सेक्शन 142 जो उन्होंने कंपनीज ऑडिट में कर लिया है. फॉर अदर्स, nationalized bank and state bank, it is RBI in consultation with central government. Simple. Next, conducting of audit. How an audit of banks will be conducted? Basically there are 5 phases. I will divide the 5 phases as planning, execution and reporting. ठीक है. So this is initial consideration, जहाँ पे before executing the procedures you need to check some of the initial consideration, and the initial consideration are none other than the provision of SA 210, the points, the paras of SA 210, wherein you are required to give engagement letter, a mutual discussion, a mutual understanding, a overview of the bank, how many employees, what is the scale, volume. ये सारा चीज will come under initial engagement. Then this two I club as a planning and procedure stage. रिस्क असेसमेंट एंड एग्जीक्यूशन स्टेज, ये दो है एग्जीक्यूशन, एंड ये है रिपोर्टिंग. दिस इज ऑलरेडी मेंशन. ठीक है. सो क्विकली विल रीड. इनिशियल कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस you will check. Next, declaration of indebtedness. Why? Because in order to have independent status, this declaration is required to be made. Terms of audit engagement, this I already told you, this is SA 210. Commitments previous audit, establishment of audit team. This is initial audit engagement, मतलब before starting the audit. Next, understanding and basically after 200, after 210, after applying 220 acceptance and continuance, then you apply 300 series. So in 300 you have 315 talking about identifying and assessing risk of material misstatement through understanding entity and its environment. So the next part we will be talking about understanding the entity, understanding the environment. So risk assessment and developing a plan, understanding the accounting policy, risk management process, control activity, involvement of TCWG and reliable information. This is a past exam question. Means what understanding an auditor will have to obtain before initiating a bank audit. This is a question. What understanding? Understanding about
by heart, understanding about accounting policy, then risk management process, control, activity, involvement of those charged with governance, TCWG, and the last, reliable information system. Simple? Sure? Okay. Next, risk assessment, you will apply the procedure of 315 and SA 240. SA 240 basically talks about susceptibility of fraud. Okay? Having a professional skepticism, exercising professional skepticism. Assess specific risk and risk associated with outsourced activity. It is not without sourced, it is with outsourced. Okay? Okay. Next, execution. Execution is talking about basically responding to assessed risk. Wherever the auditor is assessing risk, obviously the substantive procedures will be on a higher scale. The sample selection will be on the higher scale. That is responding to the assessed risk. And here in this situation, we also have 330 playing role here. And then talking about 320, maintaining a level of materiality, determining the level of materiality. And assess going concern. GC is nothing but, I'll write it for you. GC is nothing but going concern. Okay, and the last point talking about reporting. So when we started with Caro, initially I taught applicability of Caro. In that, bank audit was under exception. Means what? Have a clear view. If at all we are talking about reporting for banks, Caro reporting is not applicable. So ma'am, how should we report? The requirement here is to report under LFAR. What is LFAR? Long form audit report. How we should report? वो आगे बढ़ाएंगे. Making sense? So this is what, this is conducting audit. कितना पढ़ लिया? We studied enactments, then we studied appointment, then we studied remuneration, and then we studied conduct of audit. Conduct of audit में understanding the entity was a PEQ. 5 things was required to be understood. Done? Okay. चलिए next. Checking internal controls. Okay. Internal controls में सबसे पहला point आ जाता है. See, internal controls is that factor which every company will design and try to implement. ठीक है? You being an auditor, you will have to check how much reliance या फिर internal controls are existing, are they operating effectively. This is your matter of concern. So currently we are checking about internal controls for a specific zone. Constituent ledgers, then we'll be talking about loans and advances, telegraphic transfer, credit cards. Okay? So basically we'll be talking about internal control in these 4 specific areas. Okay? And every part is a past exam question. So you need to make sure they're talking about internal controls and which field, which core area. Okay? Currently I'm taking core area as constituent ledgers. So internal controls of bank, constituent ledgers. First part पढ़ना start करें. The very first thing, see, understand constituent ledgers के बारे में बात करें. So here we'll be checking कि बैंक के पास appropriate controls है क्या. Before making the payment, बैंक ने check का amount, sign, डेट, ये सारा चीज़ चेक कर रहे हैं क्या बैंक, अप्रोप्रिएट पर्सन है क्या, ये सारा चीज़ चेक करने को फर्स्ट थिंग ये चेक करेंगे. जो चेक रिटर्न आया है वो चेक, जो रिटर्न लिखित में आया है, रिटर्न आया है, वो चेक बराबर प्रॉपरली अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज चेकिंग और नॉट. सेकेंड थिंग वील चेक कि सारी की सारी एंट्रीज पास की गई है या नहीं. वी विल ऑल्सो चेक द लेजर कीपर, जो लेजर कीपर रिकॉर्ड बना रहा है उसके पास वाउचर का एक्सेस ना हो, एंड ना हो. यस, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट मेकर चेकर कंसेप्ट. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. सो जो लेजर कीपर है, ही शुड नॉट हैव एक्सेस टू अदर वाउचर्स एज वेल. ठीक है, सो ये आपको चेक करना. ऑल एंट्रीज आर मेड, देयर इज नो एक्सेस टू वाउचर समरी टू लेजर कीपर. नेक्स्ट, इंटरेस्ट अप्रोप्रिएटली डेबिट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो विड्रॉवल इज अलाउड फॉर द चेक डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. से फॉर एग्जाम्पल कोई डिपॉजिटर, कोई अकाउंट होल्डर ने आज की तारीख में बैंक में एक चेक डिपॉजिट करा है, आज ही पैसा विड्रॉ करा रहा है. सो देर इज समथिंग विच इज फिशी गोइंग ऑन. अगर पैसे ऐसे रूट कर रहा है तो डिपॉजिट कराने की क्या जरूरत थी. ठीक है, सो ये इंटरनल कंट्रोल्स बैंक एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, ये आपको इवेल्युएट करना है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग.
जो रिटर्न चेक है, डेट साइन रुपीज, ये अप्रोप्रिएट पर्सन चेक कर रहा है. ऑल एंट्रीज आर मेड इन लेजर्स, देयर इज नो एक्सेस, इंटरेस्ट डेबिटेड अप्रोप्रिएटली, डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है, देयर इज नो विड्रॉवल अलाउड. ठीक है, क्या है ये है इंटरनल कंट्रोल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट लेजर्स. नेक्स्ट, फॉर लोन्स एंड एडवांसेस. अंडरस्टैंड, for loans and advances, what all things you feel as an internal controls organization should implement. Firstly, अगर loan sanction हो रहा है, it is within the limit. Appropriate authority is sanctioning the limit. Appropriate collaterals are taken. It is agreed upon agreement. Collaterals की condition सही है, collateral की custody safe हाथों में है. ये सारा चीज़ हम चेक करेंगे. Absolute मतलब ये सारा चीज़ as an internal control हम चेक करेंगे कि क्या organization इतना देख रहा है क्या. लोन्स आर सैंक्शन आफ्टर क्रेडिट वर्दीनेस चेकिंग. ठीक है, सो ये सब इंटरनल कंट्रोल्स है या नहीं, ये इवैल्यूएट करना. चलो क्विकली हैव अ लुक. आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, अभी हम लोगों ने बोला ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, कोलैटरल का वैल्यू सही तरीके से पीरियडिकली ऑपरेशन में है, रिव्यूज हो रहा है कि नहीं, नो लोन्स आर सैंक्शन, नो लोन्स आर डिसबर्स्ड बियॉन्ड सैंक्शनिंग लिमिट, इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ कोलैटरल, सफिशिएंट मार्जिन कम बैंक रख रहा है कि नहीं, अप्रोप्रिएट एंट्रीज आर पोस्टेड, सिक्योरिटीज आर इन पोजेशन, आर इन सेफ कस्टडी. ठीक है, ये सारा चीज एज एन इंटरनल कंट्रोल यू विल इवैल्यूएट के बैंक के पास है या नहीं है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल फॉर टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स एंड डीडी, डिमांड ड्राफ्ट्स बेसिकली. सो यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, अंडरलाइन आप चीज़ें चेक करोगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट रिलायबल प्राइवेट कोड है क्या. आप ये चेक करोगे कि क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों बैंक के बीच में एक अप्रोप्रिएट एंट्री पास हो रहा है क्या. आप ये चेक करोगे कि सिग्नेचर्स, आप ये चेक करोगे इन द सेंस आप ये इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे. आप चेक करोगे कि सिग्नेचर्स प्रॉपर सिग्नेचर के अगेंस्ट में ऑथराइजेशन हो रहा है क्या, कंफर्मेशन मिला है क्या. अगर कंफर्मेशन नहीं मिला है तो कोई प्रोसेसिंग नहीं करना. ठीक है, ओके. सो रिलायबल प्राइवेट कोड एंड नोन टू रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स ओनली, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर्स, इमीडिएट कंफर्मेशन रिसीव्ड, इफ नो कंफर्मेशन इज रिसीव्ड बैंक शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स. मेक सेंस, ये क्या है इंटरनल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड डीडी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड इशू. नाउ यू सिंपली अंडरस्टैंड बैंक को क्या क्या कंट्रोल्स इशू करने चाहिए क्रेडिट कार्ड के जोन में. क्रेडिट कार्ड के जोन में आपको देखना चाहिए कि जहाँ पे इशू हो रहा है, जहाँ पे जो कार्ड इशूइंग अथॉरिटी है वो प्रॉपर अंडर कंट्रोल है. इफेक्टिवनेस स्क्रीनिंग वगैरह, जहाँ पे इफेक्टिव स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, जो फिल्टरिंग होता है, पासवर्ड होता है, वो सब अप्रोप्रिएटली सेट है. असेसमेंट ऑफ क्रेडिट्स, किसको क्रेडिट कार्ड्स दिया जा रहा है ये चेक करना. प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द मर्चेंट फॉर सेटलमेंट, जहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैंने कार्ड स्वाइप कराया, द मर्चेंट विल हैव अ प्रॉम्प्ट सेटलमेंट टू बैंक, तो ये अप्रोप्रिएट है या नहीं. रियम्बर्समेंट टू द मर्चेंट्स का रियम्बर्समेंट आफ्टर चेकिंग द स्टेटमेंट, ये किया जा रहा है कि नहीं. स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएटली सेंड बाय द एंड ऑफ द मंथ, जहाँ पे से फॉर एग्जांपल मेरे मंथली लिमिट है एक्स अमाउंट, वो एक्स अमाउंट का बिल मंथ के एंड में मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ साथ पहुँच जा रहा है कि नहीं. दिस इंटरनल कंट्रोल. कमीशन शुड बी अप्रोप्रिएटली चार्ज, ऑब्वियस है. एंड नो डिसबर्समेंट फॉर द अमाउंट बियॉन्ड द लिमिट. ठीक है, दिस इज मल्टीपल टाइम आस्क्ड क्वेश्चन. Okay, making sense. So I have written few important and the easy point which you can remember. Basically the question will be for 4 marks. Again I am telling you, so 8 points are more than sufficient. Making sense? पक्का श्योर. क्या पढ़ा हमने? इंटरनल कंट्रोल्स फॉर 4 एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, डिमांड ड्राफ्ट्स एंड लास्ट वाला जो अभी पढ़ा हुआ है क्रेडिट कार्ड्स. मेकिंग सेंस? पक्का. आगे बढ़े. नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं. अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया है, क्या चेक कर लिया. बैंक ऑडिट हमने स्टार्ट किया था. बैंक ऑडिट में अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, एनैक्टमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स, ये सारा देख लिया है. नाउ गोइंग अहेड विथ SLR रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑडिट ऑफ कंप्लायंस विद SLR रिक्वायरमेंट. सो SLR के लिए पहले तो ये समझो SLR क्या है. इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक टू मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. मैम क्यों मेंटेन करना? इन ऑर्डर टू हैव लिक्विडिटी इन द बैंक. ठीक है मैम, कंपलसरी है क्या? स्टैट्यूटरी है, कंपलसरी है. ठीक है, सो यू बीइंग ऑडिटर, व्हाट इज द नीड? यू बीइंग ऑडिटर, द नीड इज टू चेक 2 थिंग्स. व्हाट? 1 करेक्टनेस एंड 2 मेंटेनेंस. मीन्स SLR का जो अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ है, क्या वो अमाउंट सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है क्या. 2, अगर जो अमाउंट सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है, बैंक ने उसको मेंटेन किया है क्या.
ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है। मैम कब करनी है? ये चेक करनी है ऑन एनी ऑड डेट्स ड्यूरिंग द मंथ। मतलब फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स में कोई भी दिन पे जा करके आप ये SLR की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई है कि नहीं ये चेक करना है। मैम कौन से दिन पे जाए? एनी डेट नॉट बीइंग फ्राइडे, बस शुक्रवार, फ्राइडे नहीं होना चाहिए, एल्स कोई भी दिन पे जा करके चेक कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑडिट अप्रोच, यू अंडरस्टैंड द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रांच ऑडिटर को कहिए कि ब्रांच ऑडिटर आपके वहां का ट्रायल बैलेंस भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि दिस इज अ ओवरऑल बैंक ऑडिट। ओवरऑल मतलब क्या? बैंक एज अ होल, आप एक ब्रांच का ऑडिट नहीं कर रहे हो। हेंस यू आर आस्किंग ऑल द ब्रांचेस टू गिव देयर ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, on the test basis examine the consolidation regarding DTL position. ठीक है? prepared by the bank. What is DTL? It is not deferred tax liability. No, wrong. DTL is demand and term liability. ठीक है? नेक्स्ट, जब भी आप DTL का कैलकुलेशन चेक कर रहे हो तो देर आर फ्यू थिंग्स जो एक्सक्लूड करनी है, देर आर फ्यू थिंग्स जो इंक्लूड करनी है। क्या एक्सक्लूड करनी है, क्या इंक्लूड करनी है, चलिए देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स में सबसे पहला पॉइंट, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्लूडेड। रिकवरी, रुपीज रिकवर्ड अगेंस्ट द इम्पोर्ट बिल एंड हेल्ड इन सन्ड्री डिपॉजिट्स। ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सक्लूजन्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या एक्सक्लूड करना है? अनएडजस्टेड डिपॉजिट बैलेंसेस। ठीक है? नेक्स्ट, मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स। ठीक है? ये सारा चीज एक्सक्लूड करना है वाइल कंप्यूटिंग DTL। ओके? इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड करेंगे क्या? नेट क्रेडिट बैलेंसेस लाइंग विद द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एज एट द एंड ऑफ हाफ ईयर विच इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड इन द इनिशियल ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर। पढ़ते रुको। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एज एट द एंड ऑफ हाफ ईयर रिवर्स्ड इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर। ठीक है? इसको इंक्लूड करना है, इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड, जो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं लाइबिलिटीज टू अदर्स, इसको इंक्लूड करना है। रिकंसिलिएशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट्स विद नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट्स। ठीक है? ये जो मिरर अकाउंट्स का रिकंसिलिएशन होगा ये अमाउंट को इंक्लूड करना है। कहाँ ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना है? वाइल कंप्यूटिंग, वाइल कैलकुलेटिंग DTL। ठीक है? नेक्स्ट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड विद द बैंक। ठीक है? एज अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यहाँ पे जनरली द परसेंटेज इज 9%। कैसे कैलकुलेट होता है देख लेते हैं। सी, मिनिमम 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। कैसे कैलकुलेट होता है? कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ बैलेंस शीट? ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है द आइटम्स लाइंग नॉट इन द बैलेंस शीट बट आउटसाइड द बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ कंटिजेंसीज। ठीक है? सो ये सारे को कंसिडर करते हुए व्हाट वी हैव टू डू इज कैपिटल कितना है अगेंस्ट रिस्क वेटेड असेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, उसका परसेंटेज। मेकिंग दैट मिनिमम इट हैज टू बी 9%, मोर देन दैट इज गुड। चलो नेक्स्ट, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन एंड इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे आपको देखना है जहाँ पे अ ब्रांच हैज गिवन फंड्स टू अनदर ब्रांच, यहाँ पे एडजस्टमेंट ये चेक करना है आपको। अब क्या चेक करोगे? अमाउंट चेक करोगे, एंट्री, ड्यूअल एंट्री, दोनों सिस्टम्स में एंट्री, ये सब कुछ आपको चेक करना है। चलो, ऑडिटर शुड चेक, ऑडिटर्स की ड्यूटी है वेदर इंटर ब्रांच नॉर्मली रिकंसाइल एट अ सेंट्रल लेवल। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड नॉर्मल रिकंसिलिएशन एट अ सेंट्रल लेवल। नेक्स्ट, शुड रिपोर्ट द ईयर एंड स्टेटस। ईयर एंड स्टेटस आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, इंडिकेटिंग आउटस्टैंडिंग एंट्रीज। OS इज आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे कहीं पे लिख लो, OS इज आउटस्टैंडिंग एंट्रीज। outstanding, okay, outstanding entries. Next, auditor can usually obtain information relevantly primarily from branch audit report. ठीक है? ये सारी information, see relevant information primarily from branch audit report. Making sense? क्या पढ़ा? 4 पॉइंट्स पढ़े। किसके लिए? ऑडिटर्स ड्यूटी के लिए। with respect to what? with respect to inter branch transactions. ठीक है? फर्स्टली नॉर्मली रिकंसाइल होना चाहिए, ईयर एंड का स्टेटस देना है, अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है उसको रिकंसाइल करना है, एंड लास्टली प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है प्राइमरीली एंड ऑडिटर कैन गेट इट फ्रॉम ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है? नेक्स्ट,
वेरिफिकेशन ऑफ 4 थिंग्स एज अ वेरिफिकेशन. अब ये जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा पार्ट है, समझते हैं. ये जो पार्ट है यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिकली प्रोविजन फॉर एनपीए. यहाँ पे प्रोविजन ऑफ एनपीए आई विल टेक यू बैक टू प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी ऑल्सो. मैंने आपको एनबीएफसी के टाइम भी प्रोविजन नॉर्म्स पढ़ाए थे, ठीक है. ओके, सो ये है. नेक्स्ट आपको वेरिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज चेक करना है एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट. सो बेसिकली 4 चीजों का वेरिफिकेशन कैसे किया जाए ये प्रोसीजर पढ़ना है. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के लिए देखो कैसे बाइफिकेशन किया है, व्हाट यू हैव टू चेक एंड हाउ यू हैव टू चेक, ऐसे मैंने डिवाइड करके रखा है, ठीक है. सो जब भी वेरिफिकेशन स्टेप्स या फिर ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, आपको ऐसे ही लिखना है. ऑडिटर इन ऑर्डर टू चेक सो एंड सो विल हैव टू अप्लाई सो एंड सो प्रोसीजर, उस हिसाब से, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू चेक दिस, ऑडिटर विल हैव टू अप्लाई दिस एज अ प्रोसीजर. मेकिंग सेंस? सिंपल. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन. एक मिनट, आई विल टेक अ डिफरेंट कलर. या इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन एंड रिव्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ठीक है. ये आपको करना है इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए. कैसे करेंगे? यू कैन रिव्यू द पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द बैंक एंड इट शुड बी इन कंफर्मिटी विद आरबीआई नॉर्म्स, आरबीआई गाइडलाइंस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. मेकिंग सेंस? सो सबसे पहला पॉइंट, with respect to investment you will check internal control and you will check internal control investment policies, ठीक है. कैसे चेक करोगे? review the policies framed by the bank. secondly you need to match it with RBI guidelines and statutory guidelines, ठीक है. next, separate investment function. separate investment function का मतलब क्या है? secondly you have to check अगर investment as a work as an objective बैंक ऑपरेट कर रहा है, you should check proper segregation of duty, proper allocation of work and different functioning is handled in a sequential manner, ठीक है. so with respect to internal control first point, second point is with respect to investment as a function. कैसे चेक करेंगे? check segregation of duties, trade, settlement, accounting etc, ठीक है. next point you will check ये जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है या नहीं है. सो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे करेंगे? फिजिकली वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है. फिजिकली वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इट्स ऑथराइजेशन, क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? जो फिजिकल अकाउंट है वो तुम्हारे नॉर्मल, जो अगर आप फिजिकल जैसे कि डीमैट वगैरह स्टेटमेंट देख लिया, दिस मैचेस विथ योर अकाउंटिंग सिस्टम, इसको रिकंसाइल करना है. सो हाउ यू विल डू इट? Examine the reconciliation physical accounts, verify the securities obtained, ठीक है. verify the securities and obtain confirmation. यहाँ पे कॉमा है, कॉमा पुट कर लीजिएगा. next, examination of valuation, whether they are valued on a proper note or not. so you'll have to check valuation methods. you will also have to verify या फिर classify import export valuation check, ठीक है. next, special purpose certificate regarding investments, you will have to check whether the bank is maintaining a separate special accounts or not, ठीक है. and this all should be as per RBI guidelines, ठीक है. RBI guidelines, ठीक है. next, classification of shifting. understand what is classification of shifting? investments are categorized. आपने शायद कहीं ना कहीं पे पढ़ करके रखा होगा hold till maturity, ऐसा पढ़ा है ना. यहाँ पे जहाँ पे hold till maturity, हेल्ड फॉर सेल या फिर हेल्ड फॉर ट्रेड, ये सारा जो होता है ना, इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं. इफ इट ऑल बैंक्स एनी टाइम वांट टू रिक्लासीफाई इट, ये रिक्लासिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल. बट रिक्लासिफिकेशन तभी ही पॉसिबल है जब रिक्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया मेट हुआ है. सो वेन एवर इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड, यू बीइंग ऑडिटर यू विल हैव टू चेक वेदर द रिक्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज आर मेट और नॉट, ठीक है. ओके, अंडरलाइन दैट. एग्जामिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन शिफ्टिंग, verify that such shifting of classification is approved by board. making sense? पक्का? क्या पढ़ा हम लोग? पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन. उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने हर चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन, व्हाट टू वेरीफाई एंड हाउ टू वेरीफाई. व्हाट टू वेरीफाई में वी इवैल्यूएटेड पॉइंट्स एंड हाउ टू वेरीफाई में वी रोट सम पॉइंट्स. एज अ स्टूडेंट दिस इज अ सिनॉप्सिस. समझो, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं हाउ टू वेरीफाई वाला पॉइंट सिर्फ एक बार पढ़ूंगी. मेरा क्लियर फोकस होगा व्हाट टू वेरीफाई पे. क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये वाले पॉइंट्स याद है ना, इसके सामने, इसके अगेंस्ट में देयर आर जनरल पॉइंट्स टू बी नोटेड. जैसे कि मैंने आपको बोला डॉक्यूमेंट्स, सो इट इज इम्प्लाइड दैट यू विल फिजिकली वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स. मेकिंग सेंस? अगर मैं बोल रही हूँ इंटरनल कंट्रोल, इट इज इम्प्लाइड दैट यू विल वेरीफाई, यू विल रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ द बैंक. यस,
So as a student, your clear focus should be on what to verify. How to verify is the second deal. You are CA final student, you can write it very well. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एनपीए. सेकंड बी पॉइंट पे आ गए हैं, प्रोविजन फॉर एनपीए. पहले तो समझो व्हाट इज एनपीए. Whenever the amount is outstanding more than, it is overdue more than 90 days, bank classifies such assets as NPA, non-performing asset. Usually for regular asset, bank classifies या फिर record the income on cash basis. But in case of NPA, in case of non-performing assets, bank will record the income not on accrual basis but on cash basis. Yes, understanding that? Okay, अब समझो. जब भी एनपीए हो गया मतलब क्या, ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. मुझे कोई तो असेट होल्डर है, किसी को तो मैंने लोन या एडवांसेस पे करके रखा है, एंड दैट ऑपोजिट पर्सन हैज नॉट रीपेड प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. अगर ये प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो मैं उसको कंसिडर कर देती हूँ एनपीए में. सिंपल एज दैट. बट देर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस अंडर विच द बैंक विल नॉट डायरेक्टली क्लासीफाई द असेट एज एनपीए बियॉन्ड 90 डेज. वहां पे क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इट एज एनपीए इज डिफरेंट. ठीक है, वो क्या है वो पढ़ते हैं. चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजन. प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है. रेगुलर है तो अक्रूवल बेसिस, एनपीए है तो कब. इफ इनकम इज ओवरड्यू फॉर मोर देन, उसको ब्लॉक कर दो. फॉर मोर देन 90 डेज क्लासिफाई एज एनपीए एंड अकाउंट द इनकम ऑन कैश बेसिस. ठीक है. हाउएवर, यहाँ पे देखो मैंने मार्क करके रखा है. हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस क्लासीफाई एनपीए एज पर द कंडीशन मेंशन. मतलब ये जो कंडीशन मैंने मेंशन किया ना, इसके हिसाब से आपको एनपीए क्लासिफिकेशन करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट 90 डेज हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. ओके, चलिए बढ़ते हैं. फर्स्ट, टेम्पररी डेफिशिएंसी. इन केस ऑफ टेम्पररी डेफिशिएंसी यू विल नॉट कंसिडर द असेट एज एनपीए इफ इट ऑल इट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. तो मैम कब करेंगे एनपीए क्लासिफिकेशन? इफ इट ऑल द इनकम इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 180 डेज, तब कंसिडर करेंगे उसको एनपीए. ठीक है. पीपल, मैं भी जो पढ़ा रही हूँ दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो बहुत बार क्वेश्चन में आया गया है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में. ठीक है. सो इन दिस केस 180 डेज का कंसिडरेशन है. नेक्स्ट, इफ एट ऑल एनी एडवांस इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी. से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको, आई एम बैंक, यू आर द पर्सन हु इज बोरोइंग फंड्स. अगर आपने कोई अमाउंट बोरो किया है एंड दिस एडवांस इज बैक्ड बाय, आपके पास गारंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की. सो बैंक को कहा जाता है कि बैंक, इनके पास गारंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, डोंट कंसिडर इट एज एनपीए. तो मैंने कहा तो कब कंसिडर करूँ एनपीए? इफ द गारंटी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेप्यूडिएटेड. अगर गवर्नमेंट ही आपको बोल देता है कि नहीं नहीं बस हो गया, अब मैं गारंटी नहीं दूंगा, तो बैंक कैन क्लासीफाई सच असेट एज एनपीए. ठीक है. सो डिवाइड करते हैं. गवर्नमेंट गारंटी डिवाइड इनटू टू पार्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है. In case of central government, you will consider NPA when the guarantee is repudiated, means cancelled. In case of state government, the case is as usual, as normal. In case of state government, income overdue for 90 days, तभी आप consider कर सकते हो as NPA. ठीक है. Next, in case of agricultural loan, now extremely important for CA Inter as well. For CA finals, understand. In case of agricultural loan, you basically classify the loan into two parts depending upon the crop. कि कौन से फसल के लिए फार्मर ने हमारे पास से लोन लिया है. ये फसल इज डिवाइड इनटू टू. फर्स्ट इज लॉन्ग क्रॉप, सेकंड इज शॉर्ट क्रॉप. अब लॉन्ग क्रॉप, शॉर्ट क्रॉप कौन से बेसिस पे डिवाइड हुए? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कि कितना समय लग रहा है वो फसल उगाने के लिए. ठीक है. इफ एट ऑल एनी क्रॉप नीड्स मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है फसल उगने के लिए, उस फसल को हम कहेंगे लॉन्ग क्रॉप. ठीक है. एंड एनी क्रॉप विच टेक्स एज शॉर्ट, लाइक नॉट मोर देन 1 ईयर, विच इज विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम समय लग रहा है वो फसल उगने के लिए, उसको हम कहते हैं शॉर्ट क्रॉप. ठीक है. तो समझो क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 थिंग्स, लॉन्ग क्रॉप एंड शॉर्ट क्रॉप. लॉन्ग क्रॉप, शॉर्ट क्रॉप में देखो, इफ एट ऑल द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 सीजन, 1 लॉन्ग क्रॉप सीजन, मतलब 1 साल से भी ज्यादा अमाउंट, 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया और अमाउंट पे नहीं हुआ. इन दैट सिचुएशन अ बैंक कैन क्लासीफाई सर्च एग्रीकल्चरल लोन एज एनपीए. ठीक है. शॉर्ट क्रॉप पे के केस में ये सीजन हो जाएगा 2 टर्म्स, 2 सीजन्स. ठीक है. इफ द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 सीजन फॉर लॉन्ग क्रॉप, इफ द अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 सीजन फॉर शॉर्ट क्रॉप्स. इन दिस सिचुएशन बैंक कैन कंसिडर एग्रीकल्चरल लोन एज एनपीए. हाउएवर, if at all such non-payment is because of natural calamity, in this situation bank will not consider the asset as NPA, rather it will
रीशेड्यूल द लोन, ठीक है, रादर इट विल रीशेड्यूल द लोन। यहाँ पे मेकिंग सेंस? पक्का। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ इट ऑल द प्रोजेक्ट इज अंडर मोराटोरियम। प्रोजेक्ट अंडर मोराटोरियम का मतलब क्या है कि कोई प्रोजेक्ट जिनको हम लोग ने फंड किया है दैट इज अंडर हॉल्ट, दैट इज अंडर डेवलपमेंट फेज। तो until and unless that moratorium period is completed, the bank will not consider such an advance as NPA, ठीक है? मेकिंग सेंस? सिंपल? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। लॉन्ग क्रॉप का मतलब होता है 1 ईयर, शॉर्ट क्रॉप का मतलब होता है एनी पीरियड विच इज नॉट अ लॉन्ग क्रॉप सी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अभी आपको क्या चेक करना है? अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर बैलेंस शीट डेट। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपको ये चेक करना है कि जो बिफोर बैलेंस शीट डेट लाइक 31 मार्च के नियर बाय जो भी पेमेंट हुआ है ओवरड्यू अकाउंट्स वगैरह के लिए वो अकाउंट किया है या नहीं किया है। जेन्युइन सोर्स देन अकाउंट नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए, ठीक है? पेमेंट मिल गया है तो अकाउंट नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए बट यू रेगुलराइज्ड इट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट ऑडिटर शुड केयरफुली असेस वेदर, अब अंडरलाइन करना, रीपेमेंट वाज आउट ऑफ जेन्युइन सोर्स एंड नॉट जेन्युइन सोर्स और नॉट, ठीक है? नेक्स्ट ड्रॉविंग पावर कैलकुलेशन। ड्रॉविंग पावर कैलकुलेशन का मतलब क्या है? यू शुड एंश्योर दैट द ड्रॉविंग पावर इज विद इन द लिमिट, ओवर एंड अबव एक्सटेंडेड नहीं हो जाना चाहिए। फर्स्टली कैलकुलेटेड एज पर द गाइडलाइंस, प्रॉपर रिपोर्टिंग, अंडरलाइन करना, प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट एंश्योर द मोबिलाइजेशन ऑफ एडवांस, जो भी अमाउंट आया गया ये मोबिलाइज होकर के करेक्टली रेड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है? ओके, एंश्योर द स्टॉक ऑडिट इज कैरिड। स्टॉक ऑडिट का मतलब क्या? से फॉर एग्जाम्पल यू बीइंग अ पर्सन, आपने आपके स्टॉक के अगेंस्ट में कुछ अमाउंट लेकर के रखा है एज ड्रॉइंग पार, सो ऑब्वियसली दिस ड्रॉइंग पार इज अगेंस्ट योर स्टॉक, तो स्टॉक शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड, ठीक है? एंश्योर द स्टॉक ऑडिट इज कैरिड आउट बाय द बैंक फॉर ऑल द अकाउंट्स फंडेड, ठीक है? ओके, एक्सपोजर ऑफ मोर देन स्टेपुलेटेड लिमिट, मतलब लिमिट के विद इन है, इट इज नॉट बियॉन्ड इट, ठीक है? ये आपको चेक करना है। ओके, गोइंग अहेड, प्रोविजनिंग टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड असेट। प्रोविजनिंग का मतलब क्या? एनबीएफसी याद करो। प्रोविजनिंग का मतलब है जब भी एनपीए क्लासिफाई होता है तो यू अगेन स्टार्ट क्लासिफाइंग इट एज सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। ये जब भी कैलकुलेशन होता है, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनपीए, कोई भी अकाउंट को हमने एनपीए ट्रीट किया है तो उसके अगेंस्ट में सर्टन परसेंटेज शुड बी केप्ट एज अ प्रोविजन, ठीक है? सो यहाँ पे ये चेक करना है कि वो जो सर्टन परसेंटेज है 10, 20, 30, 50, 100 और 0.4 ऐसे आपने रेट्स पढ़े हैं ना, ये जो परसेंटेज का प्रोविजन हम कर रहे हैं ये परसेंटेज का प्रोविजन इज एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। अंडरलाइन करो, आरबीआई सर्कुलर, ठीक है? चेक ऑल द प्रोविजंस इन डिटेल। ये जो स्टेटमेंट्स ऑफ एडवांसेस है उसके सारे प्रोविजंस के फंक्शंस को, मतलब परसेंटेज को चेक करो। नेक्स्ट प्रोविजन के बाइफर्केशन को चेक करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइफर्केशन? जो अभी मैंने कहा, सबस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, लॉस, डाउटफुल, ठीक है? ओके, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ केसेस। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? रीशेड्यूलमेंट, ठीक है? जब भी रीस्ट्रक्चरिंग का केसेस होता है इट शुड बी, आंख बंद करके लेकर के, इट शुड बी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है? ओके, स्क्रूटिनाइज द क्रेडिट वर्दीनेस एंड कंसिडरेशन फॉर एनपीए। नेक्स्ट अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑब्वियसली एज पर आरबीआई नॉर्म्स, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अब जरा ध्यान से समझो। ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाय द वे? वेरिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, ठीक है? ये जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, एनपीए, एडवांसेस या नॉन परफॉर्मिंग असेट, ये क्वेश्चन एज अ होल आ सकता है कि हाउ एन ऑडिटर शुड परफॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ एनपीए, ठीक है? या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली फ्रॉम दिस पार्ट कि अगर कोई बैंक ने एनपीए को खरीदा है, एग्जाम्पल आई एम वन बैंक, बैंक ए, ये जो बैंक दिख रही है आपको ये है बैंक बी, ठीक है? जो बाकी एक बैंक है। बेसिकली हमने क्या किया है? बेसिकली मैंने इनको हमारे बैंक के एनपीए बेच दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ एनपीए, या फिर मैंने ये बैंक बी के पास जो एनपीए थे वो खरीदे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ एनपीए। तो एक सेपरेट क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट डायरेक्टली आ सकता है, बेसिकली इवन May 15 में पूछा गया भी था, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई सेल और परचेज ऑफ एनपीए व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, ये आंसर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? समझते हैं सेल और परचेज। फर्स्टली जनरल पॉइंट्स पढ़ते हैं। यू शुड एंश्योर
द पॉलिसीज एज पर एज लेड बाय बोर्ड. नेक्स्ट, ओनली दोज एनपीए आर सोल्ड जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनपीए स्टैंडिंग है. समझो, से फॉर एग्जाम्पल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एनपीए स्टैंडिंग है नहीं, पैसा आ गया है, मैंने उसको रेगुलराइज कर लिया है. अकाउंट को रेगुलराइज करने के बाद क्या फिर भी मैं वो असेट को बेच दूं? आंसर इज नहीं. वही एनपीए को बेचेंगे जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी एनपीए है. नेक्स्ट, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एनपीए इज रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस बिकॉज एनपीए के लिए कुछ भी हम अक्रूवल पे नहीं करते, ऑन कैश बेसिस. नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट टू सेल देयर शुड नॉट बी एनी लीगल या ऑपरेशनल रिस्क. मतलब अब मैंने एनपीए को सेल कर लिया, अभी कोई लीगल या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी, कोई रिस्क नहीं है. बैंक शुड नॉट परचेज एनपीए वंस सोल्ड. ठीक है. नेक्स्ट, द असेट शुड हैव बीन सोल्ड और परचेज विदाउट रिकोर्स. विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या है? मेरा कुछ भी फंक्शनिंग वहां पे नहीं होगा. रिकोर्स और नॉन रिकोर्स आपने फैक्टरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. ठीक है. सो वंस द एनपीए आर सोल्ड इट शुड बी सोल्ड या फिर परचेज विदाउट रिकोर्स. Making sense? I am giving you 1 minute. This is important. Please study from your end. फटाफट पढ़ लो, पॉज करके पढ़ो, मैं आगे बढ़ रही हूँ. ठीक है, चलो गोइंग अहेड. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन सेल. और क्या करना है? ऑन सेल एनपीए शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट. शॉर्टफॉल इन केस ऑफ नेट बुक वैल्यू, इट इज बीवी, इट इज शॉर्टफॉल इन केस ऑफ नेट बुक वैल्यू शुड बी डायरेक्टली चार्ज टू पीएनएल बिकॉज ये लॉस है. ठीक है, ओके. इन केस ऑफ प्रॉफिट इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. It should not be recognized in P&L. अब underline करो. Rather, kept as reserve to meet any other shortfall from sale of any other NPA. ठीक है. Next, in case of purchase, अब ये दोनों purchase वाले point है. In case of purchase, all the recovery should be first adjusted against the cost of acquisition, and इसके बाद जो बचा है that should be charged to P&L as revenue. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, ये जो एनपीए हमने खरीदे है ना, मतलब कोई बैंक के एनपीए थे, मैंने खरीद लिए, मैंने ये बोला कि अरे यार मैं रिकवर कर सकती हूँ. अब जब भी मैंने खरीदे हैं, मैं कैसे क्लासीफाई करूंगी इसको? मैं क्लासीफाई करूंगी एज 100% रिस्क वेटेड असेट, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है. एज ऑन टुडे जीरो डेट पे मुझे भी नहीं पता पैसा कितना मिल पाएगा या मैं कितना रिकवर कर पाऊंगी. समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? ठीक है, चलो गोइंग अहेड. डन विद दिस. इट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. आगे बढ़े. ओके, चलो. कंटिंजेंट लायबिलिटीज. बेसिकली कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब क्या है? दीज लायबिलिटीज आर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ माय बैलेंस शीट. मेरे बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रही है, बट नीचे एज अ डिस्क्लोजर दे आर लाइन. ठीक है. इसमें क्या क्या पढ़ना है? बेसिकली इसमें पढ़ना है क्लेम्स विच आर नॉट एक्नॉलेज्ड बाय द बैंक. मतलब कुछ रैंडम क्लेम्स आ गए जो मुझे पता ही नहीं थे. फर्स्ट. नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. गारंटी गिवन ऑब्वियसली. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस. अगर मेरे कोई ऑब्लिगेशंस है जो मैंने एक्सेप्ट करके रखे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह, एंड बिल्स फॉर कलेक्शंस. मेकिंग सेंस? सो ये 5 चीजें हैं जो मुझे कंटिंजेंट लायबिलिटी में पढ़नी है. ओके, आगे बढ़ते ना. जैसे मैंने आपको ऊपर एनपीए के वेरिफिकेशन के लिए कहा कि पूरा क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, वैसे यहाँ पे भी फुल क्वेश्चन आ सकता है. वेरिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी आया हुआ भी है मे 17 में आरटीपी में, या फिर एक एक एलिमेंट पे ऐसे ये जो 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट पे सिंगल एलिमेंट्स पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट. चलिए, क्या पढ़ना है? हमको देखना है कि ये जो डेट है विच इज नॉट एक्नॉलेज एज डेट बाय द बैंक, उसमें क्या क्या चेक करेंगे. फर्स्टली विल चेक कि हु इज अ पर्सन जिसने क्लेम किया है. ठीक है. सो करस्पॉन्डेंस विद द पेयर, क्लेमनेंट्स, वर्कर्स, ऑफिसर, जिसने भी क्लेम किया है कि भाई सामने वाला पर्सन कौन है. ठीक है. यूनियन एक्सेट्रा. नेक्स्ट यू विल चेक मिनट्स. अगर बोर्ड मीटिंग्स में ऐसी कोई बात हुई है तो लेट अस चेक दैट. सेकेंडली यू विल चेक द कॉन्ट्रैक्ट्स और द अग्रीमेंट्स कि यार जो पर्सन ने इतना केस वेस किया है उसके साथ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या था. नेक्स्ट यू विल चेक द क्लेम स्टेटस एज एट द ईयर एंड. ठीक है. ये ओएस का अगेन मतलब है आउटस्टैंडिंग. प्लीज आप भी लिख लेना, इट इज आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट्स. अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स है विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन तो वो भी आपको चेक करना है. ठीक है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंटिंजेंट लायबिलिटी में. कंटिंजेंट लायबिलिटी में तो सबसे पहला पॉइंट वाज डेट नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट बाय द बैंक.
सेकेंड पॉइंट, इफ इट ऑल एनी लायबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स, ठीक है ना। उसमें क्या चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर चेक करना है, आपको चेक करना है नेट पोजीशन, ईयर एंड पे फाइनेंशियल एक्सचेंज का पोजीशन क्या था। नेक्स्ट आपको चेक करना है क्या वो स्क्वायर ऑफ हो गया है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, गारंटी गिवन, अगर गारंटी गिवन है तो एडिक्वेट, आईसी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर इशुएंस ऑफ गारंटीज, मतलब जब भी गारंटी दिया है तो इंटरनल कंट्रोल के वाया प्रॉपर सैंक्शन, अधरेंस टू प्रॉपर लिमिट्स, मार्जिन मेंटेन किया है या नहीं, ये चेक करना है। सो यू विल चेक एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर इशुएंस ऑफ गारंटी। सेकेंड पॉइंट अगेन सेम हो रहा है, समझो, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर अनयूज्ड गारंटी फॉर्म्स, जो फॉर्म इशू किए थे किसके कस्टडी में है ये फॉर्म, वेरिफिकेशन ऑफ सर्च फॉर्म्स, रिकंसिलिएशंस ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गारंटी रजिस्टर चेक करना है इन ऑर्डर टू चेक कंप्लीटनेस के सारे जितनी भी गारंटीज दी थी वो सारा का सारा हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है या नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑल गारंटीज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपायर्ड गारंटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये मेंशन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वेरीफाई द सिक्योरिटीज हेल्ड एज मार्जिन्स एंड यू विल ऑल्सो हैव टू चेक कंप्लायंस विद रिस्पेक्टेड AFRF। मैम AFRF क्यों लिख रहे हो? I can write AS29 here, but now with respect to the change in financial reporting framework, it is better to use the word applicable financial reporting framework, ठीक है। So all these things are required to be checked in case of guarantees. Next, in case of acceptance, endorsement and obligations, what you will have to check is proper, मतलब internal control over letter of credits, custodies of unused letter of credits, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस, रजिस्टर्ड मेंटेन चेक करना है, कॉपीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड। नेक्स्ट, वेरीफाई द सिक्योरिटीज ऑब्टेन्ड फॉर इशुएंस, जो भी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में LC इशू किया है वो चेक करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ चेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या चेक करोगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए चेक करोगे ड्रॉ किसने किया है बॉस, दैट बिल्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर कलेक्शंस, bills collection made subsequent to the date of balance sheet, procedures for crediting the party on whose behalf the bills was collected। एक मिनट, प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग का मतलब क्या? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, बिकॉज जब भी हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया होगा हम लोगों ने वो पार्टी को एज ए डेटर स्टैंडिंग रखा होगा, सो इन ऑर्डर व्हेन द अमाउंट इज कलेक्टेड वी शुड क्रेडिट दैट पार्टी, ठीक है। सो यू नीड टू चेक द प्रोसीजर्स ऑफ क्रेडिटिंग। Next, adequacy of internal control, IC is internal control, that is appropriateness of debit, recording the amounts, no income has been accrued, ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का। सो क्या पढ़ा है? वेरिफिकेशन ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स की ओर। वेरिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स में सबसे पहला इज इंडिविजुअल अकाउंट्स का डिपॉजिट, सैंपल बेसिस पे इसको चेक कर लीजिए, ठीक है, ऑन सैंपल बेसिस। सब्सिडरी लेजर्स, सब्सिडरी लेजर्स में आपको रिकंसाइल करना है रिलेटेड कंट्रोल्स, जनरल लेजर रिकंसाइल करना कि मैचिंग है या नहीं है। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस द ऑडिटर शुड एग्जामिन रिकंसिलिएशन प्रोसीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट? बेसिकली अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट इज नॉट मैन्युअली कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम्स। तो आपको चेक करना है कि सिस्टम्स जो इंटरेस्ट प्रोसेस कर रहा है दैट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ठीक है। तो कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स अक्रू हुआ है वो 360 डेज ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज कंसिडरेशन है। इंटरेस्ट जो भी अक्रू हुआ है बट नॉट ड्यू ऑन डिपॉजिट्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। सो इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट, कंफर्मेशन चेक करना है आपको। ये चेक करना है कि कंफर्मेशन जो प्रोसेस है बैंक का कंफर्मेशन प्रोसेस ये पीरियोडिकली एंड कंसिस्टेंटली रन हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस के अकाउंटिंग के ऊपर चेक करना है। यू शुड चेक इट दे आर नॉट नेटेड ऑफ। क्या चेक करना है? करंट अकाउंट्स आर नॉट नेटेड ऑफ ऑन लायबिलिटी साइड बट रैदर दे आर अप्रोप्रिएटली एंटर्ड या फिर इंक्लूडेड अंडर द हेड एडवांसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, वेयर द अकाउंट्स आर इन ऑपरेटिव, जहाँ पे अकाउंट स्टैग्नेंट है, डोरमेंट है, ऑपरेटिव नहीं है, यू विल हैव टू चेक कि दे आर रिवाइव्ड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर अथॉरिटी, रिवाइव्ड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर अथॉरिटी। नेक्स्ट, सीरियल नंबर, जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो प्रॉपरली सीरियल नंबर से दिए हुए हैं।
कैश सर्टिफिकेट्स, इनको आपको सीरियली मैच करना है. मेकिंग सेंस? ठीक है. नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी में अगर डिपॉजिट्स है तो फॉरेन करेंसी में इसका कन्वर्जन रेट भी चेक करना है. फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैव बीन करेक्टली कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज एट एन अप्रोप्रिएट रेट. ठीक है. नेक्स्ट, KYC नॉर्म्स. ये KYC नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स, ये सारा चीज़ आपको क्रॉस वेरीफाई करना है. मेकिंग सेंस? सो क्या चेक कर लिया हम लोगों ने? डिपॉजिट्स वेरीफाई करने के स्टेप्स पढ़ लिए. नेक्स्ट, गोइंग अहेड टू कॉन्करेंट ऑडिट. अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्करेंट ऑडिट? Concurrent audit is when the auditor simultaneously checks the deposits and the advances. मैम कितना simultaneously करेंगे? Minimum 50% should be checked simultaneously. So understand, it is the process of verification of transactions or activities concurrently as the transactions or the activity takes place. Concurrently मतलब simultaneously. It is not a pre-audit. ये साथ में ही करना है. As per the guidelines, the requirement is to cover at least 50% of the deposit and 50% of the advances under this audit. ठीक है. स्कोप क्या क्या चेक करेंगे मैम? कॉन्करेंटली क्या क्या चेक करना है? चेक करना है कैश, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, हाउस कीपिंग एंड एनी अदर आइटम्स. मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? ओके. Just go to our website cacselectures.com and you will find Gauzy Learning. In that section you will find a lot of lectures at very affordable price, and you can choose a lot of books. In the books section you will find different authors have given their books in that section, and you can buy and gain knowledge and experience. And if you want to buy CA Final, CA Inter or CA Foundation video lectures, you can choose those sections, and you will see thousands and thousands of teachers sharing their experience and knowledge in the form of lecture, and you can just scroll down and you will find a lot of lectures. And if you are going to take the test series, you just need to go to our website thisstudy.com, and you will find our section of test papers where are different customized test plans are there available for you. So it all depends how you want to perform and be connected with the Gauzy Learning and get the best results. All the best. Please don't forget to motivate us by liking the video, subscribing to our channel and commenting below that how this session are helpful for you all. Thank you.